Hi guys, how are you? So earlier we were doing basic uh, SQL questions for our interview preparation. That's I think we had completed till 15th, question 15th, and we practiced questions on where clause, having clause, group by, basic SQL questions. Now let's move on to question 16. List employees whose first name starts with A. So this is we have to filter those employees whose first name is starting from A. So it's an example of filtering. So for this we know that we have to use where clause. So first let's write select star from employees where first name column name is first name starts with A. So first name here we have to use like clause, and I'll write first name is starting with A, and rest it can be any alphabet. I think this will work. So this percentage means any number of alphabets or and any alphabet, but A should be fixed in the first. Let's see if it works here. See, Anna, Amy, Andrew, Aaron, Adam. Okay, so it works like this. Let's see if I use equals to instead of like. So okay, so now we have to use the like. Got it. We're done with this. Let's move on to question 17. Find employee whose last name ends with a son. So it's son. Okay. So last name जो है वो स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है लेकिन लास्ट में उसके SON होना चाहिए लाइक जेसन और मेसन like this. That's right. So let's start from employees where last name like. So इसमें हम परसेंटाइल पहले लिखेंगे एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर और एनी कैरेक्टर हो सकता है बट लास्ट में SON से खत्म होना चाहिए. Let's see. Yes, Wilson, Anderson, Jackson, Thompson, Robinson, Nelson. Okay, let's move on. For 18th question, display employees with salary between 50,000 and 70,000. Okay, so we want वो वाले एम्प्लॉइज जिनका सैलरी 50,000 या 70,000 से के बीच में. So including 50,000 and 70,000 and उसके in between जितने भी हैं like 60,000, 61, 55, 54. So let's see. Select star from employees where salary I can use greater than equal to 50,000 and salary is greater than equal to 70,000. One method तो ये है 50,000 and salary is less than equal to 70,000. This will also work. बट हमने एक और मेथड सीखा था between कीवर्ड से. So select star from employees where salary between 50,000 and 70,000. So both will work.
50, 60, 65, 62, 62, 57. And this will also work. Salary greater than, तो आई थिंक ये थोड़ा शॉर्ट है, दो कंडीशन दे रखी हैं ऐसे, तो हम ले सकते हैं. एंड आई थिंक एंड भी यूज कर सकते हैं, बट एंड इज योर चॉइस, कोई भी जो आपको सही लग रहा है वो, दोनों मेथड पता होना चाहिए बस. ओके, जो साथ में कर रहा है उसको कोई डाउट है तो पॉज करके आंसर देख सकता है यहाँ से. Find the average salary per department. I think we did the question like this earlier. Per department, I think we found count per department employee count चाहिए, तब हमें average चाहिए salary का. Okay, select average AVG salary, average चाहिए as, इसको एक नाम दे देते हैं average underscore salary. Now from employees table, from employees कोई मैटर नहीं करता, ऊपर लिखूँ नीचे लिखूँ, बट थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए लिख देते हैं. सेलेक्ट एवरेज सैलरी, थोड़ा बड़ा करें एज सॉरी पर डिपार्टमेंट. ओके, सो डिपार्टमेंट पे ग्रुप करना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट का चाहिए इसको, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. यस, दिस विल वर्क. हर डिपार्टमेंट का दे दिया है, अब हमें नहीं पता कि कौन से डिपार्टमेंट का क्या एवरेज सैलरी है, सो विल राइट डिपार्टमेंट. Finance 63,500 is average. HR 56,222 is average. So ओके, सबसे ज़्यादा है फाइनेंस का. सो अभी तो हम एसक्यूएल, बेसिक एसक्यूएल का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट कोई डेटा एनालिस्ट के लिए कर रहा है प्रिपेयर, या बिजनेस एनालिस्ट, तो यू शुड नो हाउ टू गेट इनसाइट्स. अभी तो हमारे पास बहुत छोटा डेटा है, तो छोटे इनसाइट्स जैसे सबसे मैक्स फाइनेंस का है एवरेज सैलरी, सबसे कम है आईटी की एवरेज सैलरी. तो ऐसे इनसाइट्स निकालने को बोल सकते हैं वो. तो फिर एज पर नीड हम ऑर्डर बाय लगा सकते हैं यहाँ पे, ऑर्डर बाय एवरेज सैलरी देन डिसेंडिंग. या छोटे डेटा में फर्क नहीं पड़ता, बड़ा डेटा हो तो देन यू कैन सी. Okay, let's move on to question number 20. Find the highest paid employee in the each department. So we saw कि तो इनको चाहिए हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय, सबसे ज़्यादा जिसको पे मिलता है सैलरी, मतलब मैक्सिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय चाहिए इनको. सो इट्स इजी, हमने मैक्स वाला फंक्शन देखा था, सो उससे कर सकते हैं. बट ये इनको चाहिए ईच डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट का. सो इसमें ग्रुप बाय भी यूज़ करना पड़ेगा, मैक्स भी यूज़ करना पड़ेगा, दोनों चीज़ लगेंगी. लेट्स सी. सो आई नीड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम तो चाहिए. ओके, एम्प्लॉय स्टार from employees. Okay, where ऐसे नहीं होगा, ईच डिपार्टमेंट तो ग्रुप बाय तो करना ही पड़ेगा, फॉर्म की जगह फॉर्म लिख दिया. So if I get max
सैलरी, इससे तो मैक्सिमम सैलरीज पता लगेगी। हम उसके एम्प्लॉय कैसे पता लगे कौन सा एम्प्लॉय है? What if I write employee here? No. डिपार्टमेंट भी तो आसान है। डिपार्टमेंट हाईएस्ट सैलरी, इस डिपार्टमेंट में ये हाईएस्ट सैलरी है। अब ये किसकी सैलरी है वो कैसे पता करें? What if I write, सॉरी क्या किया मैंने, डिपार्टमेंट के बाद अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखूं तो ये एरर देगा। यस, ग्रुप बाय में नहीं है। अगर मैं ग्रुप बाय में एम्प्लॉय की बेस पे भी कर दूं, मतलब फिर डिपार्टमेंट अलग अलग आएगा क्योंकि दोनों के बेस पे है। अब कैसे करें उसका अप्रोच? Let's see, highest paid employee, each department, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये मेरे को आ गया है। इसमें सब क्वेरी यूज कर सकते हैं, CTE भी यूज कर सकते हैं, बट आई एम थिंकिंग कोई बेसिक मेथड बिना सब क्वेरी के हो पाए तो डिपार्टमेंट हमें बनना चाहिए। वेयर से हो जाएगा। वेयर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग ना, इससे भी नहीं होगा। हैविंग से भी नहीं होगा। हैविंग सैलरी ग्रेटर देन, हमें आई थिंक find the highest paid employee in each department. अगर सब क्वेरी करूं, so let's see. नहीं, wait. अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉई फर्स्ट नेम डालूं, ये मेरे को लिस्ट देगा। फर्स्ट नेम एना है, इसकी हाई सैलरी फाइनेंस में, ये मैक्स सैलरी नहीं देगा मेरे को अभी तो। हर डिपार्टमेंट, अब मैं अगर हर डिपार्टमेंट से मैक्स निकालूं, इसमें तो सैलरी का कोई फायदा नहीं हो रहा।
approach use करते find the highest paid employee in each department. हर डिपार्टमेंट का highest paid employee चाहिए. अब मुझे बस इसकी सैलरी को बंदे से मैप करना है. कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा. ये बहुत, एक तो क्वेश्चन इतना इजी है, तो सेम अब मेरे साथ वैसे ही हो रहा है जैसे इंटरव्यू में होता है. इसी क्वेश्चन को नहीं हो पता. सिटी विद सैलरी. The salary is greater than max salary. क्या देख रहे हैं इसको. Employee ID, salary, department, employees. ओके, एम्प्लॉय आईडी आई, इसकी सैलरी आई, इसका डिपार्टमेंट है. ठीक है, ये 3 चीजें आ गई. तो है ग्रुप बाय काम नहीं करेगा. सैलरी मैक्स सैलरी. पिछली बार क्या लिखा था हमने. सेलेक्ट सैलरी एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कॉमा मैक्स. यही तो प्रॉब्लम आ रहा है क्या. अब हमारे पास मैक्स सैलरी आ गई है इससे, और इससे हमारे पास किस एम्प्लॉय और सॉरी इससे हमारे पास आया है, ये नहीं चल रहा. डिपार्टमेंट और मैक्स सैलरी आ गई है हमारे पास, और इसमें से हमारे पास आ रहा है एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और डिपार्टमेंट. बस हमें इसको ज्वाइन करना है. ठीक है, इसको सिटी ही में डालते हैं और ज्वाइन लगाते हैं विद मैक्स
cell as ये इसको नाम देते हैं ms select star from ms where मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को चार जीबीटी पे ही जाना पड़ेगा। Let's go. Find the highest paid employee in each department. Let's see कि क्या देता है आंसर। विंडो फंक्शन से नहीं करना है, ये वाला सेलेक्ट डिपार्टमेंट मैक्स सैलरी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है, ये तो दे दिया इसने। सैलरी इक्वल्स टू ये हो सकता है, बट दो बंदों की भी सेम सैलरी हो सकती है, तब क्या होगा? इतना टफ क्वेश्चन, इतना बेसिक उसमें कैसे आ गया? ओके, यूजिंग ग्रुप बाय प्लस जॉइन। विंडो फंक्शन से अभी नहीं करेंगे। This looks get an employee ID name, department salary from employees join, तो ठीक है। on I thought कि कोई easy solution होगा। This is now easy solution. Okay, approach ठीक था। देखते हैं। Select star from employees where ms dot employees को हम देते हैं e. So those who are not familiar with CTE, it's basically just a what we're saying, हम एक टेम्पररी टेबल बना रहे हैं। CTE is called common temporary expression। तो ये अपने आप में एक ऐसा टेबल बनेगा जो कि इसमें सेव हो जाएगा। तो हम उसको फिर यूज करके दो क्वेरी ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी, एमएस में से मैं उठाना चाहता हूँ डिपार्टमेंट, इसको दूंगा एज हाईएस्ट सैल। तो ms डॉट डिपार्टमेंट, जो ऊपर से डिपार्टमेंट है वो e डॉट डिपार्टमेंट होना चाहिए। एंड एक और कंडीशन होनी चाहिए, एंड एक और कंडीशन क्या था, ई डिपार्टमेंट और सेल। ओके, हाईएस्ट ms डॉट हाईएस्ट सेल इक्वल्स टू e डॉट सैलरी। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है और जो हाईएस्ट सैलरी है उनको मैच करा रहा हूँ, जहाँ पे उसको सेम सैलरी मिले और डिपार्टमेंट भी सेम मिले, वो एम्प्लॉय आईडी मुझे दिखाओ। e डॉट employee id कॉमा e डॉट फर्स्ट नेम देन ms डॉट, ऊपर से मैं डिपार्टमेंट उठा लूँगा, डिपार्टमेंट देन हाईएस्ट HIGST। ओके, लेट्स सी चलता है कि नहीं। अब एरर कहाँ पे है? नियर मैक्स सेलेक्ट डिपार्टमेंट,
from employees. So I have to take it from MS, select department from MS, then join employees table. E. Okay. Why is it not working? Maxell as with as अच्छा sorry. इसका नाम Maxell दिया है हमने max underscore salary from इसका नाम इस टेबल से उठा रहे हैं ना Maxell बनाया हमने sorry guys Maxell I guess it's a good thing कि क्वेश्चन अभी मिल गया अगर इंटरव्यू में मिलता तो गड़बड़ हो जाती क्या गड़बड़ हो रही है यू हैव एन एरर इन स्कूल सिंटैक्स चेक द राइट सिंटैक्स टू यूज नियर Maxell as with Maxell as सही तो है सेलेक्ट डिपार्टमेंट अब वो यहाँ पे दिया नहीं है इसका नाम सही से ये गड़बड़ हो रहा था ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर रखा है why is it not working near Maxell as select department max salary भी डाला है हमने as highest salary तो गड़बड़ कैसे हो रही है चैट जीपीटी से पूछा जाए बट आई वांट टू डू इट विदाउट चैट जीपीटी लेट्स सी काम करता है कि नहीं इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए क्यों नहीं काम कर रहा with Maxell as to selector from Maxell join लेफ्ट ज्वाइन लगा तो देख सकते हैं department employees empid first name everything is correct department max salary as highest salary let's go लास्ट में हमें जाना ही पड़ा very close left join is written without particular table to join हाँ कैसे लेफ्ट join लिखा तो है employees the join condition most immediately follow the join clause क्या गड़बड़ है सही तो है join के बाद डायरेक्ट हमने अच्छा वेरी गुड ऑन वेर की जगह ऑन होना चाहिए था नाइस अब क्या प्रॉब्लम है join employees on ms department and is department कितनी गड़बड़ की है this part is correct ठीक है excel max left join
Everything is correct. Why though? With Max Sal as ये तो वैसे भी नहीं चलेगा जो इन्होंने लिखा है. Yes, got it. क्यों नहीं चल रहा? इसने तो यहाँ पे एलियस नहीं दिया है. What's missing? कंपाइलर की गड़बड़ तो नहीं है. फ्रॉम एम्प्लॉइज ये भी सही है. क्या चाहिए इनको? थोड़ा स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ है. मैक्स सैलरी एज हाईएस्ट सेल फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय. सॉरी, इससे कुछ होने वाला तो नहीं है. बट सी सेलेक्ट डिपार्टमेंट ये ठीक है. सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट फर्स्ट नेम, एमएस डॉट डिपार्टमेंट, एमएस डॉट डिपार्टमेंट. ओके, एमएस डॉट हाईएस्ट सेल फ्रॉम मैक्स सेल. इसका नाम है मैक्स सेल. इसको दे दिया एलियस एमएस. देन लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉइज ई. We have given on ms dot department equals to e dot department. यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है. ms dot highest sal equals to e dot salary. Everything is correct. I want to do this, but it's not working. Why is it not working? What's wrong here? Let's see. The error comes from the fact that SQL is available in the from clause to come after CTE. You wrote with Max Salas. The syntax is correct. What? क्या बता रहा है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? Select max Salas, select department, max salary as highest from employees. Join employees. हमने क्या अलग किया है ऐसा? Let's paste this. Oh, इसकी वजह से नहीं है. नहीं, इसकी वजह से तो नहीं होगा. No, I don't know what is wrong. You have an error in your SQL syntax with check the manual that corresponds to MySQL server for the right syntax to use near max cell as CT. तो ऐसे ही लिखते हैं ब्रो. कैसे गड़बड़ हो रहा है? ये कुछ नई चीज बता रहा है मुझे. इससे तो बिल्कुल नहीं होगा. ऊपर कहीं छूटा तो नहीं कुछ? कमेंट आउट नहीं किया.
Select max salary as select department max salary as highest salary from employees. ठीक है, group by department. Got it. Select E dot from Maxwell. MS join employee. Left join joins. ठीक है, left join employees E. यहाँ पे गड़बड़ दिखा रहा है कुछ 73 में with max cell as with cd as कुछ और नाम दें इसको से LD no select department max salary as highest salary from employees. Everything is correct. Why is it not giving this the correct answer? Is perfect. भाई सब परफेक्ट है तो चल क्यों नहीं रही आपको? चलो इसको कुछ पता चले अगर यू कैन स्पॉट कि कहाँ गड़बड़ है डू लेट मी नो कमेंट्स में बता देना लेट्स स्किप नो लेट्स नॉट स्किप कुछ और मेथड ट्राई करते हैं इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी सब क्वेरी से देखते हैं वेयर लगा के वेयर सैलरी इक्वल्स टू one department equals to select the max salary employees group by where salary equals to this will not look this देखते हैं department equals to E dot department wow तो कुछ खतरनाक है where salary equals to तो ठीक है हमारा salary equals to max salary वही बता रहा है employees group by नहीं लिखा ओह so उसने क्या किया select salary from employees ठीक है where salary equals to यहाँ से अब हम max salary निकालेंगे बट यहाँ पे कंडीशन देंगे where salary equals to E dot salary
अब ये सैलरी मैप करेगा। और डिपार्टमेंट देखिएगा, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है। नोप, ये तो कुछ और ही दिया। हम्म आईटी में जॉन। अच्छा, मैक्स कहाँ गया? ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, सबको रिटर्न्स मोर देन वन रो, ठीक है। इसने ग्रुप बाय निकाला और फिर दिया। यही तो प्रॉब्लम आ रहा है ना। चैट जीपीटी किसी काम का नहीं है। फंक्शन से करना पड़ेगा। ये चलना चाहिए था, अब ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। स्टार की जगह देते हैं डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी, कॉमा रैंक ओवर partition by department, order by salary descending as high sal from employees, ठीक है। where high sal equals to 1, here select emp id comma high sal from अब क्या प्रॉब्लम है भाई? सब कुछ तो सही है, अब हर चीज में प्रॉब्लम आएगी। अब सोचो इंटरव्यू में होता मैं तो क्या होता मेरा। सब पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय सैलरी। अब क्यों दिक्कत आ रहा है? सिलेक्ट सैलरी रैंक इक्वल्स टू 1,
Over partition by department, order by salary. How is it not in? Should work. Select star, then rank over partition by department, order by salary, descending as highest cell. What? What is wrong with this? Let's see. What is wrong? ये मतलब सिंटेक्स में तो कुछ गड़बड़ नहीं है. What's happening? I don't think window function और CT ही को सपोर्ट कर रहा है ये compiler. Let's check. CT1 select star from CT1. Oh, yeah, I think CT को सपोर्ट नहीं कर रहा. CT और विंडो फंक्शन सपोर्ट नहीं. डू चेक कर लेते हैं. Yes, it supports window function because it's run on various database engines. CT. इसकी वजह से तो नहीं हुआ. Near CT1 और here यहाँ पे दिक्कत है with CT as. कैसे दिक्कत हो सकता है? ये मार क्या बोल रहे हैं? कोई is correct will run successfully. But run क्यों नहीं हो रहा? No.
समझेगा। लेट्स स्किप। I'll see कि अलग से ट्राई करोगे क्यों नहीं चल रहा। तो मैं list all the employees who are developers. Okay, we are skipping 20th question क्योंकि इतना टाइम वेस्ट हो गया उसमें। Let's move on to 21st. Developer, that means job title is developer. So this is easy. Select star from employee where sorry, job underscore title equals to developer. Done. चलो ये तो चला। नेक्स्ट देखते हैं। तो काउंट एम्प्लॉइज पर सिटी। ओके, काउंट भी यूज करना है और ग्रुप बाय सिटी पे। तो हर सिटी में कितना एम्प्लॉइज रहते हैं। ठीक है, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट काउंट, स्टार और एम्प्लॉय आईडी कुछ भी कर सकते हैं। स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सिटी इक्वल्स टू, सॉरी, ग्रुप बाय सिटी। और इससे पहले सिटी भी लगा देते हैं। 10 10 10 10 20 30 40 50। ओके, और सिटी में 10 10 है, 50 एम्प्लॉइज है हमारे पास। नाइस। अगर मैं कुछ गलत कर देता हूँ तो आप कमेंट में बता दीजिए, कमेंट में डाल दो तुम लोग, फिर इसको वैसे भी सेव करके रखूँगा, फिर चेक कर लूँगा कुछ गलत हो रहा है तो। फाइंड द सिटी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, select count star from employees, now group by city। ठीक है, having नो, अभी तो हमने सिटी निकाल लिया। सबसे ज़्यादा तो सब में 10 ही है वैसे तो। लेट्स सी कि मैक्स, हाँ ठीक है, हमें ये मिल गया है तो इसको कॉपी कर लेते हैं। सिटी विद द मैक्सिमम नंबर, विल राइट सेलेक्ट सिटी फ्रॉम, ठीक है, एम्प्लॉइज वेयर, ठीक है ये दे दिया। अब इसका मैक्सिमम निकालना पड़ेगा हमें। मैक्स नाम देंगे एमपी काउंट, सिलेक्ट सिटी कॉमा मैक्स एमपी काउंट फ्रॉम ग्रुप बाय सिटी। भाई आज कोई क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। इससे निकल गया, ग्रुप बाय सिटी आ गया। इसको अगर मैं हटा दूं, फाइंड सिटी विद हाईएस्ट, अरे यार होता तो
इसमें दिमाग खराब की वाइफ मस्ट हैव हिज ओन वेरियस, ठीक है। सब ऑन कॉलम सिटी इन फील्ड लिस्ट, तो ठीक है, सब डॉट सिटी। ओके, गॉट इट। सिटी भी तो नहीं किया है, ठीक है, अब चलना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, दिस इज कंपैटिबल विद एसक्यूएल मोड इक्वल्स टू ओनली फुल ग्रुप बाय इन एग्रीगेटेड क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय। ओके, लो। ठीक है, इसने दे तो दिया है, बट ये क्या दिया इसने, मैक्स एम्प्लॉय काउंट। ऐसे क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पा रहे मेरे से। लेट्स ऐड another expression, थोड़ी सी क्लैरिटी हो। insert into values, दो तीन और रिकॉर्ड ऐड करते हैं। बोस्टन का उठा लेते हैं, चलो। 51 Mia Roger finance account, this is all good। एक दो और उठाते हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो, बॉस्टन, शिकागो का एक और दो। 52 53 54 5 56 57। अगर कोई बोर हो रहा है तो वो इस पार्ट को स्किप कर देना, as okay। column count doesn't match value count at row 1, क्या एक्स्ट्रा कर दिया क्या कुछ? No। अब एक बार चलना बंद हुआ तो कुछ नहीं चलेगा। क्या हुआ, सेम चीजें तो डाली हैं। 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 6 7 8 9। column count doesn't match value count at row 1। ओके, अब ठीक है। अब इसमें से मैक्स एम्प्लॉय काउंट क्या है, ये select max emp count from this
I got it. DF 14. Okay. City group by city. Group by DF dot city. वैसा मैक्स काउंट अगर दे रहा है, सॉरी, DF अभी तो चला था. What is happening? Don't understand. This is incompatible with SQL mode. This contains column df.cd. अच्छा. 14 है, but sorry, I also need city. Why can't it give me city? City है वहाँ पे, maximum count है. I'm saying group by city. If you want all the cities that give me the easier answer. Okay, fine. Select star from. अब इसमें से हमें मिल तो गया है कि कौन सी सिटी के सामने कितने एम्प्लॉइज हैं. ओके, सो आई ऑर्डर बाय max, sorry, order by count. Then order by descending, I put limit 1. So मेरे को सबसे पहला रो देगा. Let's see how it works. पहले तो बिना इसके करते हैं कि दे क्या रहा है. It's giving me this. Now if I do order by count star descending, तो अब इसने मेरे को हाईएस्ट नंबर ऑफ, सॉरी, इसने मेरे को दे दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नंबर सिटी के सामने डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे ज्यादा बड़ा वाला ऊपर है, सबसे नीचे वाला, सबसे छोटा वाला नीचे है. बट आई वांट ओनली दिस एक, राइट? सो फॉर दैट I will use limit 1. This gave me Chicago with 14. So this is the highest number of employees. I was thinking कि मैं किसी और मेथड से करता. ठीक है, got it. It's better to use which is working. Got it. ये वाला सेम हम इसमें भी कर सकते थे. Find the highest employees in each department. ठीक है, अब वो ऊपर वाला करके देख लेते हैं. हाईएस्ट
employee in each department count as EMP count from employees group by department order by count की जगह direct employee count. We can do this in order by, but group by में नहीं कर सकते, direct alias use. Descending limit one, it will give me highest, but it won't give me per department, right? Yes. So ज़्यादा IT में है. If I want to see, okay, this is something else. I'll leave it. So find the city with the highest. ये शिकागो है, highest city. Chicago. Got it. Let's move on to display employees ordered by hire date. I think this is easy. हायर डेट के हिसाब से इनको सॉर्टेड चाहिए, तो सबसे पहले कौन हायर हुआ, फिर बाद में कौन हायर हुआ. सो इट्स इजी. सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय हायर डेट एंड बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग देता है. यू कैन ऑल्सो राइट, यू कैन चेक असेंडिंग. सो सबसे पहले ये बंदा ज्वाइन हुआ था लूक 2014 में, 17 जनवरी 2014. Then 14, 15, 16, 17, so on. Now I've used ascending. If I remove the ascending part, it will give me the same result. Only if I write here descending, will it give me descending. Okay, this is also done. Let's move. Find the oldest employee. Okay. सबसे पुराना employee. That means कि जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया. So find the oldest employee. Do they mean age? Okay, okay. ठीक है. Select star from employee. ठीक है. मैक्सिमम एज चाहिए अभी हमें एम्प्लॉय की. EMPID कॉमा सॉरी मैक्सिमम एज फ्रॉम एम्प्लॉय. सो सेलेक्ट, ये तो हो गया, इससे निकलेगा मैक्सिमम एज. टेबल टेस्ट एम्प्लॉय डजंट वर्क. ओके, 48 है मैक्सिमम एम्प्लॉय की. हमें उसकी एज पता चल गया, बस हमें उसकी डिटेल्स चाहिए, नाम नंबर. सो व्हाट विल डू इज we'll use it as सब क्वेरी के अंदर क्वेरी. अब इसमें से 48 आ रहा है, we know that इसका आंसर है 48. अब उसको मैच करना है. सो मैच करने के लिए we do use where, हमको पता है. देखते हैं कैसे यूज होता है. select star from employees. मैं सारे employees को डिटेल लूंगा, बट I'll use where age is equal to, इसमें से 48 आया है. सो दैट मीन्स अगर हम इसको 48 लिख देते हैं, ये मुझे ओल्ड, ये वाला 48 जिसकी एज है वो देगा. तो बहुत बंदों की है. ओके, सो 48 की जगह हम डायरेक्ट ये यूज करेंगे, क्वेरी यूज कर लेंगे. सेम रिजल्ट 48 शिकागो से. ये मैंने बाद में ऐड किए थे बंदे, उनका है. ठीक है, जो हमने अगर बाद में ऐड नहीं किए थे तो ये होता है एडम. original 48 age. So this is how we do it. This is how we okay. The youngest employee, youngest के लिए we'll use the minimum. Select minimum age from employees
select star from employees where age equals to this, whatever the answer will be. Minimum age from employees. What is the issue? Select star from okay. Yes, 24 years old. There are other methods to do this, like if I just write select star from employees और मैं sort कर दूं order by age is ascending में, ascending लेने की जरूरत है age. So ये एज के हिसाब से देगा. सबसे कम फॉल है 24 years of age जो हमने देखा अभी. अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूँ लिमिट 1, तो मतलब सबसे पहला जो रिकॉर्ड है वो दे मेरे को. मैं उसको ये बता रहा हूँ लिमिट से. So it will give me 24. If I do it 2 3 3 तो ये पहले 3 टॉप रो देगा. Okay, limit 1. Instead of this you can also write top 1. Top, how does this work? Top 1 star. Let's see how we use top. Top में भी हमें वो सिंगल भी देता है, सिंगल रिकॉर्ड देता है पहला top in SQL. Let's see the select top, then column list. Okay, let's see 2 more examples of top. First I'll use the top here. Top, it's not working. EMPID. I don't think top works in this. Top 3 star from customers. It should work. Top 2 star from employees. I don't think it's supporting the top keyword. Yes, it's not supporting. What if I do like this? Straight up top. Should have worked. I don't know why is it not working. Top 50. This, it's something else. Top 3 from customers. This should work. Okay, it's not working. It's not supporting. The compiler is not supporting, but it works in MySQL. Fine. Where were we? Okay, Metron. This is also I was telling you another method. So you can order by something, then can limit. If you wanted the older, this is for youngest member. If you wanted older, we should have ordered by age. Then we'll write descending, then the limit 1. So it will give me the oldest employee. But if there are two people who are the same age, oldest, it will give me the first one, which is in the result. Yeah, see, G48. Yep. So let's see 27. Find employees whose age is above average age. Okay, average से ऊपर जिनकी age है. So first we'll find the age, average age from employees. पूरे टेबल में average age कितनी है? What happened? अच्छा दोनों कर ही चला. Okay.
So I'll just paste it here. Select average age from employees. Got it. Average age है 34. अब इससे ज़्यादा जिनकी है वो चाहिए हमें. So we'll use select star from employees. फिर filter क्योंकि हमें filter करना है जिनकी average age से ज़्यादा है. Filter so age should be greater than 34.9. So either we can write 34.9, but assuming we don't know the age when we want to do it using SQL only. So this is also, this thing is also giving me 34. We'll just here, yep. So these all have age average more than the average, which is 34. See, 35, 42, 36, not one below 34. Okay, folks, let's move on. Display top 5 paid, highest paid employees. Okay, so top 5 highest paid employees. So let's see highest paid employees first. Select star from employees. I'll use order by salary descending. So these are my employees. So based on their salary descending order, सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर होगा. So but I only need top 5. So I'll just use limit 5. These are the employees top because I have added these after, so they are in the same salary, 76,000. So this is how you do it. Yes. Find employees who work in HR or finance. We have two conditions. Either he can work in HR or either he is working in finance. Let's see. Start from employees where his department should be. Department equals to, first I'll write HR, but normally earlier we were using and. So let's see and क्या होगा, department equals to finance. So here and will not give me the correct result because and means बिकॉज एंड अगर हम यूज करते हैं तो एंड का मतलब है कि वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा कि वो एचआर में भी होना चाहिए, फाइनेंस में भी होना चाहिए. तो एक बंदा दो अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं हो सकता. एंड दे वास्ट बस या तो एचआर में हो या फाइनेंस. सो फॉर दैट देयर इज अ कीवर्ड और. So what will work? See HR, sorry, HR finance, HR finance. So this is how the conditions work. Now count employees hired each year. Okay. डॉट ईयर चाहिए तो मतलब ग्रुप बाय करना पड़ेगा हमें. बट हमारे पास ईयर तो है नहीं, हमारे पास डेट है. हायर डेट है, हायर ईयर नहीं है. पहले इसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट करेंगे. लेट्स सी, सेलेक्ट काउंट चाहिए इनको एम्प्लॉई. ओके, एम्प्लॉइज ग्रुप बाय करना पड़ेगा हमें. ग्रुप बाय ईयर नहीं, एक्सट्रैक्ट ईयर से एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले हम. ईयर फ्रॉम इसमें से हायर डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ग्रुप बाय कर देंगे इसको. फिर लेट्स सी, डायर नहीं हायर, सॉरी. So we have a group by the year, but we also want to know what the year is. So I think अगर इसी को हम कॉपी कर दें यहाँ पे, क्योंकि इसी हमें ईयर दे रहा है हर ईयर के आगे. and let me count. Okay, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 20. That's it.
I want to test something if it works or not. Let's see. Some compilers, this also works. I see that it's not working here. This is compatible. Just hire date. Select list is not in the group by. What if I do this? Yeah, okay. Oh, it's working. Nice. मतलब मैंने कल ट्राई किया था तो चला नहीं. ठीक है, डायरेक्ट ईयर भी निकाल सकते हैं. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ईयर की जगह ये भी लिख सकते हैं. इट्स अ न्यू सिंटैक्स बट सेम थिंग. पुट इट हियर. आप देख सकते हो दोनों काम करते हैं. ओके सो अब थोड़ी देर हम टेकिंग अ ब्रेक थोड़ी देर के लिए. लेट्स कंटिन्यू. 30 क्वेश्चंस हो गए हैं. आगे का भी कंटिन्यू कर देंगे. एक और पार्ट बन जाएगा इसका. तो 3 अलग वीडियो अपलोड करूँगा. थोड़ा छोटा हो रहा है ताकि कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर कोई देख ही नहीं रहा. जैसे मेरा फ़ायदा तो हो रहा है. मेरा तो प्रैक्टिस हो रहा है बट ज़्यादा बंदे लंबे वीडियो देखते नहीं हैं तो इट्स फाइन. छोटे-छोटे अगर पार्ट डालूँगा तो इट्स कन्वीनिएंट फॉर मी आल्सो और बाकी बंदों के लिए भी. वो स्किप कर सकते हैं एक पार्ट को. इट्स अप टू यू. ओके गाइस, बाय बाय.